کہ ارے وہ تو کرسچن ہے یعنی کافر ہے, آپ نے اس کو السلام علیکم کہہ دیا. تو حضرت عمر کے بیٹے اگلے دن گئے اور اس کو کہتے ہیں وہ چال ہے میرا سلام واپس کر. آپ ویسٹ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جہاں پہ اتنے ریپ ہوتے ہیں, اتنے مطلب آپ ابھی آسٹریلیا میں ہو نا, وہاں پہ تو اتنے ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہوتے ہیں یا ریلیشن شپس ہوتے ہیں, تو آپ ان کے بارے میں کیوں نہیں کہتے ہو؟ کتنے ہوتے ہیں؟ 82% پرپیٹریٹرز والد, چاچا, تایا, دادا, نانا, ماموں, پھوپھا اس کے بعد آتے ہیں یہ لوگ. بھائی جب بچیاں آتی ہیں, آپ جو بات کر رہے ہو ننگی عورتیں ننگی چھاتیاں کھڑکاتی ہوئی عورتیں پھرتی ہوتی تھی, تو آپ مجھے بتا رہے ہو اسلامی معاشرہ وہ والا معاشرہ آپ کو چاہیے کیا؟ بچوں والی آپ لوگ جاہلوں والی باتیں کرتے ہیں. گھر گئے, سودا پرفیوم بنا رہی تھی, اس کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کر لیا اور آ کے لوگوں کو باہر کہا کہ جب کوئی عورت نظر آئے تو اس کو اپنی بیوی کے اوپر فوراً چڑھ جاؤ. تو بیوی کو, عورتوں کو سیکس ہاں جی عاقب بھائی بولو بھائی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بولو بھائی. بھائی ایتھیسٹ میں کیا بولتے ہیں؟ ایتھیسٹ لوگ کیسے گریٹ کرتے ہیں؟ میں بھی آپ کو ویسے ہی گریٹ کروں گا. نہیں آپ ہمیں کہہ دیں کیسے ہیں آپ؟ آپ تو ایتھیسٹ نہیں ہے نا. نہیں میں نے تو اپنی طرف سے تو میں نے سلام کہہ دی, لیکن آپ کا بھی سننا پڑے گا نا کہ آپ کیا بولتے ہو. ہم نے آپ کو وعلیکم السلام کہہ دیا. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آپ کو نہیں لیکن کہیں ایسا نہ ہو جائے. میں ریلیجس بھی نہیں ہوتا. نہیں لیکن ایسا نہ ہو جائے اسٹوئک بھائی ان کے ساتھ. آپ پہلے یہ چیک کر لیں کہ آپ ہمیں سلام کہہ بھی سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے. آپ کو تو میں پوچھ رہا ہوں نا کیا کہہ سکتا ہوں. نہیں ہماری طرف سے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. ہماری طرف سے تو آپ کہیں, بے شک کہیں. میں وہی ڈھونڈ رہا ہوں. نہیں آپ کو پتا ہے آپ ہمیں السلام علیکم نہیں کہہ سکتے. حضرت عمر کے بیٹے کا ایک واقعہ ہے, وہ یہ ہے, الادب المفرد کی 1115ویں حدیث ہے. اس کے اندر ابن عمر, حضرت عمر کے بیٹے, ایک کرسچن ان کے پاس سے گزرا تو ابن عمر نے ان کو کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس نے بھی واپس پلٹ گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا. تو کسی بندے نے ان کو بتایا ابن عمر کو کہ ارے وہ تو کرسچن ہے یعنی کافر ہے, آپ نے اس کو السلام علیکم کہہ دیا. تو حضرت عمر کے بیٹے اگلے دن گئے اور اس کو کہتے ہیں وہ چال ہے میرا سلام واپس کر. یہ لکھا ہوا گیو می بیک مائی گریٹنگ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ نے ہمیں السلام علیکم کہہ دیا, میں نے آپ کو وعلیکم کہہ دیا, آپ کو مولوی صاحب مارے چھتر, کہیں تم نے کافر کو اس کے اوپر سلامتی بھیج دیا تو چلو جی میرا واپس. نہیں اس کی فکر آپ مت کیجیے, مجھے پتا ہے کہ میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا کہ کیا کہنا ہے آپ کو. وہ ہماری طرف سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, آپ کو اجازت نہیں ہے یار. آپ کی عقل کتنی موٹی ہے. میں کہہ رہا ہوں ہمیں فرق نہیں پڑتا. اب ہمارے میں کوئی قدغن نہیں ہے, پابند. آپ لوگ مسلمان کے اوپر قدغن ہے, مسلمان کسی کافر کے اوپر سلامتی نہیں بھیج سکتے. جیسے ہم مرے جا رہے ہیں کہ اللہ میں کی سلامتی بھیج دو ہمارے اوپر. ہاں چلو ٹھیک ہے, آگے بڑھو. چلیں آگے. کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی آواز ایکو ہو رہی ہے, اسی لیے سنائی نہیں دے رہا ہے. نہیں میری آواز صحیح آ رہی ہے, آپ بولے کیا کہنا چاہیں گے. ہاں جی, آپ نے جو بھی ویڈیو دکھایا نا, مطلب یہ جو سلوار کچھ کیا دکھا رہے ہو آپ, مطلب یہ تو اس کا تو اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. تو میں نے کب کہا کہ اس کا اسلام سے لینا دینا؟ مطلب آپ کچھ بھی حدیثیں اٹھا کے, مطلب چنی ہوئی حدیثیں اٹھا کے آپ دکھا رہے ہو کہ بھائی اسلام ایسے ہے, غلط ہے, یہ ہے وہ ہے. مطلب آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ وہ حدیثیں آپ کی ہیں, اس میں میں کیا کروں, نہ دکھاؤں آپ کو. آپ کی گندی کتابیں کھول کے نہ رکھوں لوگوں کے سامنے تاکہ آپ لوگ لا علم رہیں. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ آپ صاف ہو, مطلب آپ یو آر پیور. ایبسولوٹلی. تو بڑے ایروگینٹ ہو آپ. اس میں ایروگنس کی کیا بات ہے؟ آپ کہاں سے صاف ہو؟ مطلب اب میں کوئی خرابی نہیں ہے. ہوں گی خرابیاں, لیکن اتنی خرابیاں نہیں جتنی حضرت محمد میں تھی. اچھا.
दिखाऊं कोई एग्जांपल दिखाऊं आपको? हमारे क्या सुनाता हूँ एग्जाम्पल? ये आपको एग्जांपल दिखाऊं, ये वाली सुनन नसाई की 264वीं हदीस है कि रसूल अल्लाह एक रात में अपनी सारी बीवियों के पास जाके उनके साथ सोते थे और गुस्ल एक तो दफा निकाह किया, उन्होंने निकाह किया एक है रात तो में सारी बीवियों के साथ यार। अच्छा, आप जब वेस्ट में जाते हो वहां तो सौ के साथ, हजारों के सौ सोते हैं लोग, तब तो आप नहीं बोलते। वो कौन हजारों के साथ सोते हैं? ओए इसमें वेस्ट में ओ नहीं नहीं यूरोप में यूएसए में यूरोप में सौ के साथ तो सोते हैं, आप यूएसए और गर्लफ्रेंड वेस्ट वाले बॉयफ्रेंड हैं, बनाते हैं। नहीं तो रसूल अल्लाह यूएसए की तरह के इंसान थे। आपको क्यों, आप उनके बारे में बोलिए ना, आप बोलिए ना कि वहां पे वो अडल्ट्री होती है, जिना होता है, नहीं, एडल्ट्री की रेप बात नहीं होते है, हैं। एडल्ट्री की बात नहीं है, आप लोगों को गलत कहानी कराई गई है। तो मुझे सिर्फ यहाँ पे तो अपनी बीवियों के साथ ही है ना, वो अपने बीवियों के साथ आपको निकाह पता था किया है। आपको इस बात का पता था रसूलुल्लाह एक रात में सारी बीवियों के साथ सो जाया करते थे? हाँ, मुझे पता था? पता था। अच्छा हाँ चलो, फिर हाँ, आपने हमारी वीडियो देखी हुई है इसका मतलब। चलो ठीक है, जी जी। मैं समझा शायद नहीं पता आपको, इसलिए मैंने आपको बताया। आप वेस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जहाँ पे इतने रेप होते हैं, अरे इतने मतलब, और कितने आप होते अभी हैं? ऑस्ट्रेलिया में हो ना, वहाँ पे तो इतने एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स होते हैं कितने होते या हैं? रिलेशनशिप्स होते हैं, कितने तो होते हैं? आप उनके बारे में क्यों नहीं कहते हो? कितने होते हैं? हाँ, कितने होते हैं? आप चेक कर लो ना, सऊदी में ज्यादा रेप होते हैं कि यूएसए में ज्यादा रेप होते हैं? एक मैं आपको एक असूल बताता हूं कि हाँ, जो जितनी जितनी आजादी देते जाते हैं उतनी उतनी आपकी सिक्योरिटी नीचे आती है, और जितनी आप सिक्योरिटी बढ़ाते जाते हैं आपकी आजादी नीचे चली जाती है। तो तो वही तो इस्लाम में है ना, अफगानिस्तान में इस्लाम में तो बैलेंस रखा है ना इस चीज नहीं नहीं को। नहीं बैलेंस है ना, नहीं नहीं कहाँ बैलेंस है, जितना मैं आपको जितना आप स्ट्रिक्ट लॉ लाओगे उतने कम क्राइम होंगे। नहीं 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 लेकिन अगर नहीं है ना इंसान अभी। देखो अच्छा सुन लो देखो यार, सर, यार सुन लो, एक सेकंड, पॉइंट बाय पॉइंट जाओ। अगर इंसान ही अपना लॉ बनाएगा ना, तो हर कोई इंसान अलग अलग सोचता है, वो अलग अलग लॉ बनाएगा अपने लिए। जो आप सोचोगे वो जरूरी नहीं है कि मैं भी उसके साथ एग्री करूं कि आप जो कहोगे तो वही सच है। ये होता है इस्लाम में, मैं आपको अब दिखाता हूँ इस्लाम कहाँ में होता क्या है होता है। ये इस्लाम होता में तो है सब। इस्लाम में। अच्छा सुन लो ना, अच्छा अब सुन लो ना, देख यार देख लो, तते तवे दे उत्ते ना जी बह जी। जा, आके गल भी सुन ले अगले दी। अच्छा अच्छा ये अच्छा अफगानिस्तान अच्छा से अभी वीडियो आई है तालिबान के शर हाँ से। हाँ خداوند نزدیک هیچ हाँ دختر نمیکرد ما هیچ فرق نمیشیم که قدر بچه هستیم من نمیفهمم دیگه بسیار زیاد ناراحت حتی از بودن خود در دنیا دیگه پشیمان هستیم کاش هیچ نمی بودیم در دنیا اصلا موجود نمیم ما به اندازه یک حیوان در ملت ارزش نداریم حیوان خودشان میتونن سر به خود برن در راه خود ادامه بدن تا بخورن بنوشن ما اجازه شمیدن نداریم خداوند نزدیک هیچ ये इस्लाम में जो आप कह रहे हो ना, रेप होते हाँ हैं हाँ नहीं होते, हाँ जी। होते हैं, और इंटरनल रेप होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं। वो तो हम भाई हम बात आप सुनो मेरी। यार एक सेकंड, ये तो पूरा आपने पूरा मुकदमा सुन लो ये तो यार, आपने मुझे म्यूट ना करना पड़े यार मुझे पूरा ये तो आपने पहले एक वीडियो उठाई है, किसी औरत की एक वीडियो उठाई है, उसको किसी ने रेप कर दिया, तो उसका मतलब क्या है? इस्लाम में लिखा है कि रेप करना अलाउड है? तो क्या अमेरिका के कानून में लिखा है कि रेप करना अलाउ है? कहाँ पे? तो नहीं, अमेरिका के स्टैटिस्टिक्स कानून आप में देखो लिखा है। ना, आप स्टैटिस्टिक्स देखो ना, वहां का जस्टिस ओ सिस्टम यार एक देखो और सेकंड, इस्लाम का हाँ जस्टिस सिस्टम सुन लो। देखो। अच्छा आप सुन लो, आप या तो बात करनी है तो मेरा जवाब भी सुन लो, ठीक है? मैंने अभी आपको आप एक बोलो, असूल अब समझाया, बोलो तो। मैंने आपको एक असूल आप समझाया। ये मैं भी वीडियो उठा के डाल सकता हूँ एथियस्ट लोगों नहीं की, आप जो नहीं डाल रेप सकते, करते हैं, जो नहीं आप नहीं गलत डाल करते सकते, नहीं आप नहीं डाल सकते। मैं आपको उसकी वजह समझाता हूँ। आप क्योंकि तवे के ऊपर हैं। बैठे हुए हैं इस्लाम को डिफेंड करने, इसलिए आपने कोई मंतक सुननी नहीं है। इसलिए पहले मंतक सुन लेंगे, बाद में घर जाकर ठंडे पानी अच्छा ਨਾਲ अच्छा, नहाओगे, बोले सोचेंगे। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा। उसके नहीं कर रहे हो इस्लाम को डिफेंड। इस्लाम में औरतों को आजादी नहीं है। अच्छा, तंबू के नाद पहनाते हैं, औरतों के महरम के बगैर अपनी शादी तय नहीं कर सकती औरतें, एक रिप्रेसिव अच्छा किस्म की। उसका नतीजा जो हम देखते हैं वो तालिबान में हम देखते हैं। तालिबान ने जिस तरह का इस्लाम, ये मैंने लड़की एक अफगानिस्तान से बच्ची ने वीडियो बनाई, उसका रेप नहीं हुआ। वो ये कह रही कि काश मैं जानवर होती, क्योंकि कम से कम जानवर को खुल फिर के फिरने की तो आजादी है, लेकिन हम औरतों को अपने घरों से निकलने की आजादी नहीं है। औरतों को आजादी घर से मर्द की इजाजत के बगैर नहीं निकल सकती। अच्छा,
آپ کے عورتوں میں کتنے ریپ ہوتے ہیں میں آپ کو ویڈیو پاکستان کی رپورٹ سنا. پاکستان میں, اور یہ سب سے بدشکل بات ہے, گروپ ہے ہمارا این جی ہوتا تھا وار اگینسٹ ریپ WAR, انہوں نے بتائی اسٹیٹسٹکس, اور یہ ایشو جب ٹیکل کریں گے پاکستان میں, اس سے آپ کی ایک ریولوشن بھی آئے گی, ایوولوشن بھی آئے گی, ریزسٹنس بھی آئے گی. گائنیکالوجسٹ سے پوچھا جاتا ہے, بچیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ ریپ کس نے کیا, 82% پرپیٹریٹرز والد, چاچا, تایا, دادا, نانا, ماموں, پھوپھا اس کے بعد آتے ہیں یہ لوگ. بھائی جب بچیاں آتی ہیں گائنیکالوجسٹ کے پاس, والدین کو لے کے آتی ہیں, یہ نہیں کہ پولیس لے کے جائے تھانے کہ میری بچی کا ریپ ہوا ہے, کہتی نہیں جی والد نے کیا تو اب میں اپنے خاوند کو تو نہیں چھوڑ سکتی. تو کیا کرتی ہیں, وہ اس کے ابارشن کرا دیتی ہیں, اور پھر کہتی ہیں جی میرے والد ہے تو میرا دوپٹہ نہیں اتارا. میں اس پہ 3 سال میں نے اس پہ کام کیا ہے, اور یہ اتنا بدشکل فیسٹ ہے اس سوسائٹی کا. میں بار بار سوسائٹی کی بات کر رہی ہوں. لوگ کہتے ہیں درندگی ہے, درندگی نہیں ہے, یہ انسان ہی کرتے ہیں, درندے تو ایسے نہیں کرتے. تو جو ریپ ہوتے ہیں نا اس طرح کی کلوز سوسائٹیز کے اندر, وہ ان کے چاچے مامے پھوپھے تائے آپس میں, جتنی انسولر سوسائٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ. اچھا میں ایک سوال پوچھوں آپ سے, ابھی پہلے میرا پوائنٹ پورا سن لیں, پہلے میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں. تتے توے کے اوپر پاکستان کوئی بیٹھنے سے اسلامک کنٹری ہے؟ نہیں تو کیا وہ نہیں تو وہ کوئی ہندو کنٹری ہے؟ پاکستان میں کون سا نظام چل رہا ہے؟ پاکستان میں تو ویسٹرن نظام چل رہا ہے. بھائی ایک سیکنڈ, اچھی بات ہے, ایک سیکنڈ. پورا پاکستان میں عورتیں گھروں سے باہر پینٹیں پہن کے نہیں نکلتی ہیں. اچھا پاکستان میں بڑا انسولر میں نے تو آزاد عورت مارچ دیکھا ہے. افغانستان ہے نا, اور وہ تو چند عورتیں ہیں نا, وہ تو لڑ رہی ہیں, وہ تو کہہ رہی ہیں کہ ہم نے مغرب کی طرح کا بننا ہے. اگر وہ مغربی قانون ہوگا تو وہ کیوں نکلیں گی باہر؟ وہ تو کہہ رہی ہیں کہ ریپریسو سوسائٹی ہے. اچھا ایک مغربی عورتیں کیوں اسلام قبول کر رہی ہیں؟ سن لو پاکستان اگر بڑا لبرل ہے نا تو ٹھیک ہے, وہ لبرل بائی دا مسلم سٹینڈرڈ, تو اس کی جو ایکسٹریم شکل ہے نا وہ طالبان ہے. تو طالبان تو اسلامی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے یوان ریڈلی کے بارے میں سنا ہے؟ میں نے اس کو چھوڑو, وان چھوٹلی کو چھوڑو, مجھے بتاؤ طالبان اسلامی ہے یا نہیں ہے؟ طالبان اسلامی ہے کہ نہیں ہے؟ آتا ہوں اس کے اوپر. یوان ریڈلی کے بارے میں سنا ہے؟ اس کی سٹوری سنی ہے؟ یار آپ کتنے سال کے ہو؟ آپ کو کیا ہے اس کے ساتھ میں کتنے آپ سال نہیں, کا ہوں؟ آپ کو ایک ٹاپک پہ رہنا نہیں آتا. دیکھو آپ اسلام کے اسکالر تو نہیں ہو نا جو میں آپ کی بات سنوں. میں آپ کا اسکالر ہوں, میرے سے سیکھیں اور بات کریں. اچھا یہ ادھر سے چھلانگے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا افغانستان, کیا طالبان اسلامی ملک ہے یا نہیں ہے؟ طالبان اسلامی ملک ہے ابھی. اچھا وہ آپ کے حساب سے زیادہ پاکستان سے زیادہ بہتر ہے نا اسلام کے لحاظ سے؟ میں نہیں کہہ سکتا بہتر ہے. ابھی وہ آئے ہیں, ابھی ان کا وہ وہاں پہ عورتوں کو گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے, پردہ ٹکا کے ہے, گھر سے باہر نکلو گے مرد کی اجازت سے تو پورا ٹوپی والا برقع پہن کے نکلو گے. کے بارے میں کیا کہنا ہے جو یار بھاگ کیوں رہے ہو یار آپ کو کیوں بھاگ؟ ایوان ریڈلی نے کیا کیا؟ ابھی اس کے اوپر تو بات کر لو, کیوں چلانگے مار رہے ہو؟ یہی آپ کے بارے میں بولیے نا. وہ طالبان کے ساتھ رہ چکی ہے, وہ طالبان کے ساتھ رہی نہیں ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ افغانستان میں اس نے اسلام قبول کیوں کیا؟ اگر اسلام اتنا ہی خراب ہے اس کو کہتے ہیں اسٹاک ہوم سنڈروم. اسلام کیوں محمد علی نے کیوں قبول کیا تھا؟ اس کو کہتے ہیں محمد علی نے کیوں قبول کیا؟ مائیکل جیکسن نے کیوں قبول کیا؟ نہیں, مائیکل جیکسن نے نہیں کیا اسلام قبول. کس نے کہا مائیکل جیکسن؟ اچھا نہیں کیا. نہیں کیا. اچھا مائیک ٹائسن نے کیوں کیا؟ نہیں اس نے بھی نہیں کیا. وہ آپ کو پتا ہے میرووانا کا وہ فارم چلاتا ہے مائیک ٹائسن. کون؟ نشہ جو میرووانا ویڈ جو ہے نا اس کا فارم ہے مائیک ٹائسن. آپ کو پتا ہے USA میں ابھی کتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, اور میکسیمم میں سے نہیں کر رہے اسلام. آپ کو بیوقوف. اچھا یار مجھے آپ سے نا آپ 10 چھلانگے ماری جا رہے ہیں, مجھے بالکل مزہ نہیں آ رہا آپ سے بات کرنے کا. میں نے پھر آپ کے سامنے قرآن کی گندی گندی آیتیں کھول لی ہیں. میں نے قرآن کی آپ کے آگے گندی گندی آیتیں کھول لی ہیں. لے آتے ہو بیوقوف. آپ بیوقوف ہو, آپ نظر آ رہے ہو بیوقوف ہو. جب کوئی مسلمان دیکھے گا نا وہ یہی کہے گا, مسلمان دیکھ کے یہی کہے گا دیکھو یہ تو حارث نے پلانٹڈ بیوقوف بندہ بٹھایا. وہ آپ کو بھی یہی کہے گا. وہ کوئی مسلمان کہے گا کہ حارث نے پلانٹڈ بیوقوف بندہ بٹھایا. ہو سکتا ہے وہ یہی کہے گا, کیونکہ آپ نے ریپ کے اوپر بات کرنی تھی تو آپ نے گھسا لیا بیچ میں. آپ کو پتا, آپ ان سے ان چیزوں کا جواب مانگ رہے ہو, میں بھی آپ سے کن چیزوں کا جواب مانگ رہا ہوں. آپ بول رہے ہو کہ آپ نے ریپ سے بات شروع کی, آپ ریوان ریڈلی پہ چلے گئے. ہاں ریپ میں آپ دیکھو نا, اسلامی جہاں پہ نظام ہے دنیا میں وہاں پہ ریپ ہوتے زیادہ کہ جہاں پہ نہیں. میں نے آپ کو دکھایا ابھی پاکستان میں 82% ریپ جو ہم چاچے مامے پھوپھے تائے باپ بھائی کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ سے پاکستان میں اسلامی نظام ہے ہی نہیں.
नहीं नहीं, ना वो कभी इस्लामी था ना मुल्क कभी तो है है। ना, इस्लामी मुल्क तो है ना, वो इस्लामी मुल्क तो यार है ना। मुसलमान जहाँ पे रहते जरूरी नहीं कि मतलब वो इस्लामी मुल्क की। ओए, लॉ ऑफ द लैंड क्या है? लॉ ऑफ द लैंड है कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इस्लामिक नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो मुल्क में इंसुलर का मतलब समझते हैं, नहीं। जहां पे इतनी ज्यादा नहीं होती, जहां पे आपस में हम्म, मिलके रहते हैं, जहां पे फैमिली सिस्टम जिसको कहा जाता है, औरतों को जी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। तो जो इस्लामी हाँ। सिस्टम जिसको आप कह रहे हैं ना, जो तालिबान में, वहां पे ये रेप इससे भी ज्यादा होते होंगे, क्योंकि उनको औरत नहीं मिलती तो बकरी के ऊपर चढ़ जाते हैं, खोते के सच। ऊपर मोमिनीन्स चढ़े होते हैं। क्योंकि हाँ। जिसको आप कह रहे हैं ना इस्लामी मुआशरा, हम्म, इस्लामी मुआशरे में लोंडियां नंगी छातियों के साथ फिरा करती थी। आपको दिखाऊं हदीस, आपको वाकया दिखा दूं, आपको वीडियो चला के दिखा दूं, आपके बिलाल फिलिप्स ने वीडियो बनाई हुई है, ये बताई हुई है, ये बात आपके आलमों ने मुझे बात पता बताई हुई है। है। हाँ। हाँ, तो आप जो बात कर रहे हो, नंगी औरतें नंगी छातियां खड़काती हुई औरतें फिरती होती थी, तो आप मुझे बता रहे हो इस्लामी मुआशरा, वो वाला मुआशरा आपको चाहिए क्या? बच्चों वाली आप लोग जाहिलों वाली बातें करते हैं। कोई एक टॉपिक के ऊपर मेरे से बात करो, क्योंकि अभी इधर से छलांग यार मारते हो, कभी यार उधर छलांग मार के मैं निकल जाते आपसे कह ही नहीं रहा हूँ कि इस्लामी मुआशरा चाहिए ना चाहिए। हैं। ये आप देखो, एक ठहरो, मैं मैं आपसे आप कह रहा हूँ, खोलूंगा आपके आप सामने, एक मैं एक ठहर जाओ, मैं अब आपके सामने आयत खोलूंगा। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की हदीस है कि आई वाज वॉकिंग इन द मार्केट विद इब्न उमर, वही जिसने अभी कहा था मुझे सलाम वापस करो। हजरत उमर का बेटा कोई बहुत ही 2 नंबर किस्म का आदमी था। व्हेन वी केम अक्रॉस स्लेव ट्रेडर्स गैदर्ड अराउंड अ स्लेव गर्ल, जब हम आए जो लौंडियों को बेच रहे थे, जिन्होंने दुकान लगाई हुई थी लौंडियों की, तो हम उसके पास आए और हमने उसको फिर एग्जामिन करना शुरू किया। एग्जामिन का मतलब हमने उसे जांचना शुरू कर दिया। व्हेन दे सॉ इब्न उमर दे विथड्रू एंड सेड इब्न उमर हैज कम। उन्होंने पता चल गया, यार ये इब्न उमर आ गया, वो चलो पजवा। तो इब्न उमर अप्रोच्ड हर, लौंडी के पास आया, जो ये मार्केट लगी हुई है लौंडियों की, ये आपका इस्लामी मुआशरा, वहां पे नंगी औरतें सड़कों पे बाजारों में बिक्री होती थी। इब्ने उमर अप्रोच्ड हर एंड टच्ड अ पार्ट ऑफ हर बॉडी, यानी उसकी जिस्म के हिस्से को उसने टच किया। ही सेड वेयर आर द ओनर्स ऑफ दिस स्लेव गर्ल, शी इज बट एन आइटम फॉर सेल। ये जी आइटम सेल के लिए है ये। तो भाई आपकी जो मार्केटें वहां पे लगती थी, आप जो कह रहे हो कि जी बड़ा जबरदस्त हमारा इस्लामी निजाम है, आपको तो पता ही नहीं इस्लामी निजाम क्या है। वहां पे लाइन लगा के लड़कियां लगी होती थी, जी सर कौन सी वाली चाहिए आपको, इसकी छाती ज्यादा बड़ी है, उसकी कूले ज्यादा गोल हैं, कौन सी वाली आपको पसंद है, इसके 2,000 रुपए हैं, इसके 3,000 रुपए हैं। ये आपका इस्लामी मुआशरा। आप हमें आके बताते हो जी अमेरिका में रेप बड़ा होता है। आपको क्या पता अमेरिका में कितना रेप होता है? कुछ भी नहीं पता आप लोगों को। ऐसी कहानियां आपको मौलवी कान में डालता है। आप आके कभी निकले कश्मीर से बाहर? आप ये तो ट्रैवल किया ये आपने? तो ये तो आप देखिए ना, स्टैटिस्टिक्स आप देखिए, नहीं नहीं, वो आपको स्टैटिस्टिक्स पता चल आपके जाएगा। मुल्कों में तो स्टैटिस्टिक्स होते ही नहीं ना, इस्लामी मुल्कों में। आपको लगता है अफगानिस्तान वाले तालिबान रजिस्टर लेके फिर रहे होते हैं कि हम सर्वे करेंगे आज? उन जाहिलों को तो एबीसी नहीं आती, तो वो सर्वे करते होंगे। आप उनके स्टैटिस्टिक्स मेरे मुकाबला करेंगे मगरिब के मुल्कों से, जो सिविलाइज्ड लोग हैं, उनके साथ अपने स्टैटिस्टिक्स का मुकाबला करेंगे आप? अच्छा, मगरिब के लोग ज्यादा सिविलाइज्ड हैं ओ आपके एब्सोल्युटली, साथ। हाँ एब्सोल्युटली। अभी मैं आपको ओके। वीजा दिलवाऊं, आप फौरन भाग के आएंगे वहां पे कश्मीर छोड़ के। वहां पे ओल्ड एज होम ज्यादा होते हैं, और वहां कोई पे ओल्ड, पेरेंट्स के साथ ओए आप लोगों के वहां के पेरेंट पेरेंट्स भी, के आप साथ लोगों ने कैसे बर्ताव किया जाता है, वहां पे आप लोगों औरतों ने के साथ जैसे में कुछ एज अ नहीं किया सेक्स जाता। ऑब्जेक्ट औरतों को और सेक्स औरतों ऑब्जेक्ट नहीं को होता। नो नो नो, हाँ। सेक्स ऑब्जेक्ट आपने बनाया हुआ। आपने बनाया हुआ सेक्स ऑब्जेक्ट के घर से बाहर नहीं निकलना। वो आता है, शोहर आता है हाँ। घर में, बीवी, 4 बीवियां होती हैं, चूज करता है इसके पास जाऊं उसके पास जाऊं, आज उसके साथ सेक्स करना है या उसके साथ सेक्स करना है, चलो मैं उसके साथ जाके सेक्स करता हूं। उसके घर में जाता है, उसको कहता है यार ला दे या, शलवार। ये ये आपका ये है मामला। हम भी मगरिब की औरत मुसलमान ऐसे नहीं माशरे में कहती। रहते हैं। एक सेकंड, आप मुझे मैंने आज म्यूट करना तक पड़ेगा। मैं आप मुझे म्यूट करना पड़ेगा। आप बड़े बदतमीज आदमी हो, अब छलांगे मार रहे हो। अब आपने फिर छलांग मारनी है। मैंने आपके गंदे मजहब की गंदी हरकतें आपकी जबान में बतानी है आपको। आते हैं जी, सेक्स ऑब्जेक्ट मगरिब ने बनाया। मगरिब की मेरी बीवी है ना, उसको आजादी है बाहर जाने की। वो बाहर जाएगी, काम करके वापस आएगी, आएगी घर आएगी। मैं उसके पास अगर जाऊंगा, बेगम आज मेरा दिल कर रहा है प्यार मोहब्बत की बातें करें, वो कहेगी नहीं नहीं मैं थकी हूं, मैं नहीं आज हाथ नहीं लगा, आज बस चुप करके सो जाओ। हम चुप करके सो जाएंगे। आपकी हदीस क्या है? भाईजान आपको पता है, भाईजान एक आपको सेकंड, ओ पता भाई है एक सेकंड, मगरिब ओ में नहीं एक सेकंड, आपकी बीवी क्या है? 4 बीवियां हैं। अभी मैं आपके सामने मगरिब हदीस, अभी मग- आपके सामने हदीस खोलता हूं, आपके मगरिब में रसूल इनको अल्लाह की। पता नहीं होता है ओए कौन आपको किसकी पता ही नहीं है औलाद है, मगरिब का पता है यार। ओए आपको चुप कर जाए एक सेकंड, मुझे म्यूट करना कौन पड़ेगा। किसकी आपको पता, औलाद है। ओए
तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बू कौन है? तुम्हें भी नहीं पता है, बकवास कर रहे हो। यही तुम लोगों का हाल है। ये मैं तुम्हारे सामने अब हदीस खोल के दिखाऊंगा कि औरत यहां पर क्या करती है जी। ठहरो, जो औरत को सेक्स ऑब्जेक्ट तो तुम लोगों ने बनाया हुआ औरतों को। वहां पे जाके जी फौरन बीवी के ऊपर चढ़ जाते हैं आके, ऊपर से हदीस क्या कहते हैं, अगर वो इनकार कर दे कि सेक्स नहीं करना तो सारा दिन उसके ऊपर लोग लानते करते हैं, फरिश्ते लानते करते हैं। ये है तुम्हारा इस्लाम। सेक्स ऑब्जेक्ट तो तुम लोगों ने बनाया हुआ, मार्केटें लगाई हुई औरतों की। हाँ जी, कौन सी औरत चाहिए? ये वाली चाहिए, वो लंबी वाली चाहिए, छोटी वाली चाहिए, बड़ी छाती वाली चाहिए, छोटी छाती वाली चाहिए। ये है तुम लोगों का इस्लाम। तुम लोग लेक्चर दोगे दुनिया को। मगरिब की औरत क्या करती है जी? ये अल्लाह जी, घर की लोग कभी अपने घरों से बाहर निकले नहीं, बीचेस पे बैठे होते हैं, तुम जैसे लोग ही वहां पे जाके गंद मारते हैं। ये क्या है? ये सेक्स ऑब्जेक्ट है। ये तुम्हारा बाप भी इसको हाथ लगाएगा ना तो तुम्हें पुलिस पकड़ के छितर मारेगी और मारने भी पड़ेंगे। मगरिब की औरत अपनी मर्जी से जाती है ट्रेनों के ऊपर। कभी किसी दिन बैठे होगे किसी महजब मुल्क में जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा ना। साथ साथ खड़े होते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाता। एक आधा तुम जैसा गंदा होता है जो इस तरह की हरकत कर देता है, वो बहुत कम होते हैं लोग, और उनको कानून में सजा दी जाती है। तुम्हारे नहीं दी जाती। इब्न उमर की हदीस तुम्हारे सामने भी खोल के रखी है, आके चेक करते हैं। हाँ जी, ये थोड़ी नरम है, ये वाली ठीक है, हाँ इस पे मजा, इसको लौंडी बनाने का मजा आएगा। वो तुम लोग तो किसी भी चीज के ऊपर बात नहीं कर सकते। सेक्स के मामले में गंदा, इंसानी हकूक के मामले में गंदा, हर चीज में गंदे हो तुम लोग कैसे लेक्चर दे सकते हो किसी को? आप बोलो। वो बोली जा रहा था, मैंने अच्छा किया उतार दिया उसे। आप बोलो। आपने की युवान इडली के बारे में बात, मैंने आपको बोला था युवान इडली के बारे में बात। युवान इडली में क्या? तो इस तरह की हजारों औरतें हैं। मरियम नमाजी है जो इसने इस्लाम छोड़ दिया। हाँ, तो युवान इडली भी है ना जिसने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, तो इतना तो। और वो एक इंडियन औरत है, उसने हिंदुइज्म, गोरी है वो, जर्मन गोरी, उसने हिंदुइज्म एक्सेप्ट किया। इसमें क्या फर्क पड़ता? लोग इस्लाम कबूल करते हैं, छोड़ देते हैं। अच्छा, मजे की बात ये है कि जब उसने इस्लाम क्यों कर रही है? अच्छा, तो उसको जो कहानी सही लगी उसने मान लिया, उसमें कौन सी ऐसी बात है? बड़े लोग आपके हिसाब से इस्लाम सही नहीं है ना? अच्छा यार सुन ले। अच्छा, इवान रिडली के ऊपर सुन ले। जब उसने इस्लाम कबूल किया ना तो पूरा बुर्का कस के पहनती थी, पूरा हिजाब। फिर उसने कहा यार ये क्या मुसीबत है, मैं तो तंग आ गई हूँ। फिर उसने ना ये ऊपर पट्टी डालनी शुरू कर दी। अब वो हिजाब भी पूरा नहीं लेती, अब उसके बाल भी नजर आते हैं। तो पहले उसने शुरू में कहा कि हाँ भाई, तो शुरू में जो उसने इस्लाम कबूल, सुन लेना पहले, बीच में बोल ही जाएगा, काट ही जाएगा। इस्लाम उसने कबूल किया, इसको कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। उसने इस्लाम कबूल किया, उसने तालिबान ने उसको रखा हुआ था, उसने फिर देखा है, और उन्होंने भी तरीके से उसका रेप शेप नहीं किया। उन्होंने कहा चलो जी हम जरा इसको अच्छी एग्जाम्पल सेट करते हैं उसके सामने। उसको 3 वक्त का खाना खिला रहे हैं, बड़ी अच्छी बातें उसके साथ कर रहे हैं, उसको ब्रेन वॉशिंग की कि हाँ जी ये है, बैठाओ जरा इमाम इडली को किसी एक्स मुस्लिम के साथ, देखते हैं उसकी क्या राय है बीवी की, जो पिटाई का हुक्म है कुरान के अंदर, सूरह निसा में, कि अगर बीवी बदतमीजी करे तो पहले बिस्तर अलग कर, बात करना बंद करो, बिस्तर अलग करो, फिर उल्टे हाथ की चपेट लगाओ। इवान रिडली की तो अक्ल ही आधी है मर्द की निस्बत। पूछते हैं इवान रिडली को ये बात बताई थी तालिबान ने? नहीं, ये बात नहीं बताई थी। तो ये क्या बात हुई कि उसका इस्लाम उसने कबूल कर लिया? तो इस तरह तो हजारों औरतें हैं जो इस्लाम छोड़ देती हैं। वो क्यों छोड़ देती हैं फिर इस्लाम? कोई अक्ल की बात किया करो। ये अपने पिंड से निकलो, जहां पे भी रहते हो, अपनी अक्ल को हाथ मारो। अच्छा, आप कहते हो कि हम बंदरों से आए, ये इस बात का सबूत कहाँ पे है? उसका सबूत कैसा सबूत आपको दिखाऊं मैं? कभी किताब पढ़ी है एवोल्यूशन के ऊपर? कभी एवोल्यूशन के ऊपर कोई किताब पढ़ी? ऑफ एवोल्यूशन और थोड़ी नहीं है वो थोड़ी नहीं है, थ्योरी है, फैक्ट नहीं है। वो थोड़ी, अच्छा वो थोड़ी नहीं है, वो फैक्ट है। वो फैक्ट नहीं है, थ्योरी है। अच्छा, थ्योरी के स्पेलिंग क्या होते हैं? आपको पता है? आप बोलो। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपको तो पता ना थ्योरी और फैक्ट क्या होते हैं। मैं थ्योरी के स्पेलिंग आप भी जवाब दो ना, अपनी मैं आपसे अपनी थ्योरी के नॉलेज शेयर स्पेलिंग करो। मैं आपसे थ्योरी के स्पेलिंग पूछ रहा हूँ। थ्योरी के स्पेलिंग क्या है? THEORY। अच्छा, और एवोल्यूशन के क्या स्पेलिंग है? अब एवोल्यूशन का आप बताओ, क्योंकि नहीं बंदरों आप से बताओ ना। आए। मुझे तो नहीं पता, मैं तो जाहिल हूँ, मुझे नहीं पता। आप बताएं एवोल्यूशन नहीं, के क्या बंदरों से आप आए हो ना, आपको ज्यादा एवोल्यूशन पता के होगा। स्पेलिंग बताओ मुझे। हाँ? एवोल्यूशन के स्पेलिंग बताएं मुझे आप।
यार अब आप बताओगे, जवाब दोगे कि अब ये ऐसे गूगल मजाक कर लो, करके चल गूगल करके ही बता दे यार, बैठा अरे बिठाया साजिद थ्योरी का उसके तो साथ बता दिखा। दिया ना, एवोल्यूशन का आप बता दो। अच्छा थ्योरी की डेफिनेशन बताओ क्या, हाँ, थ्योरी की डेफिनेशन which बताओ is क्या। that which is not an established fact. अच्छा ये कहाँ लिखा है, ये हाँ, कौन सी किस डिक्शनरी से आपने पढ़ के बताया, जरा अभी गूगल करो मुझे बताओ फिर पढ़ के, साइंटिफिक थ्योरी अच्छा किसे आप कहते हैं, बताओ ना, थ्योरी है कि साइंटिफिक आपको थ्योरी पता है ना बताओ ना फैक्ट किसे है। कहते हैं, पढ़ के यार गूगल करके बता दो यार। आपको पता है ना फैक्ट है, आप बता दो कहाँ से, कहाँ लिखा है फैक्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ थ्योरी किसे कहते हैं, आपको पता है ग्रेविटी भी एक थ्योरी ही है, ये साइंटिफिक थ्योरी की डेफिनेशन है, साइंटिफिक साइंस थ्योरी। ना, साइंस पे आपको है ना बहुत मतलब अच्छा आप ये सुन लेना, अब गंद अच्छा आप रहती सुन ले, अच्छा आप सुन ले, अब सुन ले, उड़न साइंस खोते थे सारा बिलीव कर, थ्योरी है, पता है। ओए उड़न खोते थे बिलीव करने वाले यार, सुन ले और गल सुन ले पहले। साइंस पहले कुछ कहता है फिर बाद। Scientific theory is an explanation of an aspect of the natural world and universe that has been repeatedly tested and corroborated. Repeatedly tested. It's an explanation. ये हाइपोथेसिस, आप जिसको कंफ्यूज कर रहे हो ना, आप उसको हाइपोथेसिस समझ रहे हो, इसलिए जब आप उससे सुनना छोड़ दोगे ना, जाकिर नलायक को सुनना छोड़ दोगे, कोई आप बोलो ना किताब फैक्ट पढ़ोगे, किधर है, कोई आप बोलो किताब फैक्ट पढ़ोगे, फैक्ट है ओए कि नहीं। एक्सप्लेनेशन इज explanation which has been tested by repeated experiments. ये फैक्ट ही होता है, यानी अगर मैं ये 10 दफा गिराता हूं ना इसको, ये नीचे गिरता है, तो मैं कहूंगा ये ग्रेविटी है, ये इसको थ्योरी कहा जाएगा साइंस की जुबान में। तो कोई किताब पढ़ो जाके, ये उड़न खोतों वाली किताबें पढ़ना छोड़ दो, कुरान पढ़ना छोड़ दो, कुरान पढ़ना छोड़ दो। अगर हम सब आई नीड टू मूव ऑन फ्रॉम यू, क्योंकि आप ट्रोल हो, आपको पढ़ने लिखने का शौक नहीं, आप आए हो यहाँ पे अपने रसूल अल्लाह की बेइज्जती करवा के निकल गए हो, गंदी गंदी हदीसें मेरे से आपने खुलवा ली हैं। मैं आपको बताता हूँ, आप हमें औरतों को दोगे, इस्लाम के बारे में बताओगे कि औरतों को सेक्स ऑब्जेक्ट बना दिया हुआ आपने। मिशकात की क्या हदीस है कि रसूल अल्लाह ने एक दफा सड़क पे एक औरत देखी, उन्हें पसंद आ गई, तो फौरन घर गए, सौदा परफ्यूम बना रही थी, उसके साथ डिंग डोंग कर लिया, और आके लोगों को बाहर कहा कि जब कोई औरत नजर आए तो उसके अपनी बीवी के ऊपर फौरन चढ़ जाओ। तो बीवी को, औरतों को सेक्स ऑब्जेक्ट आपने बनाया, यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा कि सौदा ने इजाजत दी या नहीं दी। सौदा ने कहा हाँ जी, सौदा बेचारी काम कर रही थी, रसूल अल्लाह ने फौरन चढ़ाई कर दी। यही हदीस सही मुस्लिम के अंदर भी है 1403 में, रसूल अल्लाह को औरत नजर आई, उन्होंने उनका रसूल अल्लाह के दिल में कुछ हुआ, ज़ैनब घर आए, ज़ैनब के साथ फौरन सेक्स कर लिया, कहीं पे नहीं लिखा ज़ैनब ने इजाजत दी नहीं दी। ये आप लोगों की दुनिया में औरत जो है एक सेक्स ऑब्जेक्ट है, आपकी उम्महातुल मोमिनीन भी, हर लोग सेक्स ऑब्जेक्ट है। आप भी जब घर जाते हैं, अगर आपकी शादी हो चुकी हुई है, आपने भी अपनी बीवी को यही कहना जाके, और बेगम सारे काम छोड़ो, आ जाओ हम काम करें। उसकी इस्लाम के अंदर मैरिटल रेप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में औरत नहीं कह सकती कि मेरा आपके साथ सेक्स करने को आज दिल नहीं कर रहा, उसके ऊपर सारी रात जो है ना फरिश्ते लानते भेजते रहेंगे। तो तुम लोग नहीं हो जो दुनिया को लेक्चर दोगे कि औरत का क्या मकाम है। तो एनीवे आगे चलते हैं, ट्रोल आदमी था। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।